شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ساتھیوں کو، بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں دکھ کیوں ہیں۔ آج ہم اس بات پر توجہ کریں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے، مشاہدہ کریں گے کہ ایک بیج جب ٹوٹتا ہے تو بڑی درد اور دکھ محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو خول ہے اس کے اوپر اسے لازمی ہے کہ ٹوٹ جائے تاکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ ایسے ہی 9 مہینے بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے اور سکون اور اطمینان والی جگہ پر رہتا اور تہرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے خود سانس بھی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارا کام ماں کی طرف سے اسے ہوتا رہتا ہے۔ اور 9 ماہ کے بعد اب اسے اس جگہ کو چھوڑنا ہے، یعنی کہ اسے اس دنیا میں الگ زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن جب وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، تو اس کا اب ایک عمل شروع ہوتا ہے اور وہ ہے ناف کا کاٹا جانا۔ تو بچہ چیختا ہے، اسی رونے اور چیخنے میں تو اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ نہ روئے نہ چیخے پہلے 3 منٹ میں تو اس کا اپنا نظام ایکٹیو نہیں ہوتا، نئی زندگی کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، اور پھر دن بہ دن اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ جوانی کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں ہر معاملے کو سمجھتا ہے اور خود بخود آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کو اپنے ڈھنگ سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر صرف شکایت ہی شکایت نہیں رہتی، بلکہ کچھ چیزیں اس کو آگے بڑھاتی ہیں اور کئی چیزیں اسے پیچھے کھینچتی ہیں۔ ان باتوں کو وہ مد نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں اب خواہش بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ کہیں مر نہ جاؤں۔ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ پہلے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا، اب اس زندگی سے وہ الگ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر میں کدھر جاؤں گا۔ پہلے سوچتا تھا کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کدھر جاؤں گا، پھر ہو گیا اب اس دنیا کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں گا۔ تو ہمیشہ کی زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کا اس کو پتہ نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اسے اپنے وقت تک رہنا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ دیر رہے تو ماں کے لیے اور خود کے لیے موت ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جتنا وقت مقرر ہے اس وقت تک اسے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، میں کدھر جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے بڑا بھیانک ہے اور بڑے غم کی اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ اس دنیا سے نکل کر اسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اور نہ صرف ہمیشہ کی زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں ایک اور زندگی ہے، وہ ہے ابدیت کی زندگی۔ خدا میں وہ کیسے تمام برکات، عزت، جلال، قربت، خوشبو حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ اس دنیا سے نہ نکلے۔ موسٹلی زیادہ تر لوگ
खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने मूसा को सीधा सीधा कहा कि मुझे कोई जिंदा इस दुनिया में इन आंखों में देखकर जी नहीं सकता। जब तक वो इस जिंदगी से खत्म ना हो, फारिग ना हो, उस वक्त तक कोई मुझे देख नहीं सकता। जो कोई साकन हो जाता है वो जिंदा नहीं होता। कागज के फूल में खुशबू नहीं होती। साकन होना, इंसान इस दुनिया में साकन होना चाहता है। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई तंग ना करे, मैं स्मूथली चल रहा हूं, ये दोस्तों जिंदगी का ये नाम है, अप्स डाउन। ग्राफ चढ़ता रहे, ग्राफ गिरता रहे। आप इस दुनिया को देखो, इस प्लेनेट को देखो, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी खजा आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी जखड़ आ गया, कभी कुछ हो गया। ये चीजें जो हैं, आप फिर समुद्र को देखो, उसमें लहरें उठती हैं, डीप लहरें उठती हैं, हवा इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, 40-40 50-50 फुट ऊंची लहरें उठती हैं, और इसी वजह से वो पानी जिंदा रहता है। बहरे मर्दार में लहरें नहीं उठती, बहरे मर्दार में छल्ले नहीं उठती, और इसी वजह से उसमें कोई भी जिंदा चीज नहीं है। जो जिंदा फूल हैं उनकी खुशबू होती है, वो कमला जाते हैं, और जब कमला जाते हैं तो उनके अंदर ही अंदर बीज बन रहे होते हैं। अगर वो ना खुशबू दें, ना कमलाएं, तो फिर उनके अंदर बीज भी नहीं होगा। और बीज किस में नहीं होता? वो कागजी जो फूल है उसमें नहीं होता। इसलिए इस बात को अपने सामने हमेशा याद रखें कि नस्ल को बढ़ाने के लिए अप्स डाउन होना चाहिए। नदी आप देखें, जिधर बह रही है उसके बहने के अपोजिट आप नहीं बह सकते। जिस तरह से पानी चल रहा है उसी तरफ अगर आप बहते जाएं तो डूबने से भी बच जाएंगे, थकने से भी बच जाएंगे, और जो दर्द को आप महसूस करते हैं वो दर्द भी कम हो जाएंगे, दुखों में इजाफा नहीं होगा, खुश रहना सीख जाओगे। यीशु नासरी ने कहा है कि जो कोई खोएगा वो ही पाएगा। अपने अंदर से बेकार को बाहर निकालो, खुद को खाली कर दो। जैसे एक कमरा है, अगर कमरे के अंदर आप इतना सारा सामान रख लो, इतना चीजें रख दो कि वो स्टोर सा बन जाए, तो इतनी चीजें ला ला कर भर देते हैं और फिर कमरे का कमरा नहीं होता, वो तो फिर एक दुकान बन जाती है। इसी तरह से ये जिंदगी है। अगर जिंदगी में इतना कुछ, इतने बखेड़े, इतने मामले आप भर लो, तो फिर इस जिंदगी में इत्मीनान नहीं रहेगा। फिर आप कहते हैं मुझे इतने दुख क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं? भाई ये आपने खुद ही भर रखी है। तवक्कुआत, इतनी तवक्कुआत हैं, वाबस्ता कर ली हैं दूसरों से कि सुकून खत्म हो गया। यूरोप में क्या होता है, वो बड़े मुनासिब दोस्त रखते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो बहुतों से दोस्ती रखता है वो अपने लिए बर्बादी पैदा करता है। जिसका ज्यादा ताल्लुकात हैं लोगों से, वहां पर गलत फहमियां भी पैदा होती हैं, वहां पर अबतरी भी ज्यादा है, वहां पर एक दूसरे से तवक्कुआत बढ़ती हैं, मैंने ये किया उसने क्यों नहीं किया। तो आप देखें कि आपने अपनी जिंदगी के कमरे में क्या कुछ भर रखा है। आपने अपने कमरे को एक दुकान बना लिया है, आपने अपने घर को एक बहुत बड़ा मॉल बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आप एक भीड़ में रह रहे हैं, और भीड़ हमेशा परेशानियां पैदा करती है। इतना कुछ अंदर रख लिया है
कि अपने लिए तो खाली जगह ही कुछ नहीं। कभी तन्हा बैठें, सोचें, तन्हाई का एक भेद है। नबियों ने जो खतूत लिखे, नबियों ने जो किताबें लिखी, मूसा ने जो अहकाम लिए, वो सब के सब तन्हाई का रस हैं। यर्मिया में लिखा है, यर्मिया कहता है, ऐ जवान, ऐ इंसान, तन्हा बैठ और सोच। कभी तो तन्हा बैठें। ये नहीं कि कभी तन्हा बैठना ही नहीं, जब भी बैठे तो मोबाइल पे लगे रहे, या म्यूजिक लगा के बैठे रहे, या टीवी लगा के बैठे रहे, या किसी की ऐब जोई करते रहे, या कोई ऐब गोई करते रहे। देना सीखें, लेना ना सीखें। आप सोचें, अच्छा ये मेरे पास ज्यादा इतना भर दिया है कमरा, तो मैं ये कम कर दूं, चीजें मैं देना शुरू कर दूं, उसमें से थोड़ा सा दे दो, तो आप परवरदिगार का हिस्सा बन जाओगे। आप देखो कि अगर आप चाहते हैं कि हमेशा जीना, तो परवरदिगार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि वो तो कभी नहीं मरता, वो तो कभी दुखी नहीं होता, कभी जमा नहीं करता, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। वो तो हमेशा देता है। अगर इंसान दुआ करता है तो अपने लिए करता है, खुदा को तो उसका कुछ फायदा नहीं। अगर कोई रोजे रखता है, नमाजें पढ़ता है, दैयकी देता है, चंदा देता है, हदिया देता है, शुक्रगुजारियां करता है, नजरे न्याजे देता है, तो खुदा को इससे तो कुछ फायदा नहीं। अयूब की किताब में लिखा है ये कि अगर तू इतना अच्छा कुछ करता है तो ये अपने लिए करता है, खुदा को तो इसका कुछ फायदा नहीं। तो फिर फायदा क्या है? ये फायदा है, जैसे आप मछली पकड़ने के लिए कुंडी लगाते हैं, इसी तरह से अगर आप जो कुछ आपने एक्स्ट्रा अपने घरों में, अपने कमरों में भर दिया है, अपनी जिंदगी में भर लिया है, उसको कम करना शुरू कर दो। लोग आपके करीब होना शुरू हो जाएंगे। खुदा को काम करने दें, बरकत, खुशी हासिल होगी। जबकि इस दुनिया में मछली के रूप में बहुत कुछ मिल सकता है, यानी कि जो कुंडी लगाकर आप पकड़ सकते हैं वो तल्लुकात हैं, वो आप रूहें जीत सकते हैं। अपने पैसे, आप किसी के साथ बैठकर चाय पिएं, नाराजगी की दौलत से आसमान की बादशाही के लिए दोस्त पैदा करें। वो जो आपके पास पैसा है उसको खुदावंद की बादशाही में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके हक में हो जाए कुछ। एक दिन एक शख्स यीशु के पास आया, उसने कहा, मैं ईदें भी मनाता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं न्याज भी देता हूं, मैं सदके खराज भी देता हूं, मैं दैयकी हदिये चंदे भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मुझ में क्या कमी है? मैं क्या करूं और क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो यीशु ने कहा कि एक चीज की कमी है तेरे अंदर, और वो ये है कि अपने माल को बेच दे और वो गरीबों में बांट दे। आज आप अपना तज्जिया खुद करें, अपने आप को चेक करें। पादरियों से लेके मनादों और बिशपों तक, और ये जितने नाम नहाद हैं, या जितने ढोंगची हैं, या जितने इस दौर में निकल खड़े हुए हैं कि हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आप देखिए कि इनका गोल क्या है, गरीबों में बांटना या गरीबों को लूटना। किस किस मद में लोगों को ये ठग रहे हैं। चंदे, दैयकी, हदिया, नजराना और सखावत, और फिर एवेंजलिज्म के काम में, और फिर देगें दिया करो, फिर ये करो, फिर वो करो। और फिर लोग कहते हैं हमें खुदा ने क्या दिया, तो खुदा कहता है मैं तो इनको जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और जिनके थ्रू तुम आ रहे हो
मैं तो उनको भी नहीं जानता। ये तो बेफायदा कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, मैं इनको नहीं जानता। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में लिखा है कि मेरी तो इनसे वाकफियत भी नहीं। ये कहते हैं हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़े किए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आगे से आवाज आती है, मेरी कभी तुमसे वाकफियत भी नहीं। वाकफियत के लिए अलग बैठना है, ध्यान ज्ञान करना है, सोच विचार करना है, अपने अंदर से वो चीजें निकालनी है कि मैं किस चर्च में जा रहा हूं, मेरी किन लोगों के साथ वाकफियत है, मेरी किन लोगों के साथ रिफाकत है, वो उन लोगों का क्या गोल है, वो लोग किस तरह से अपनी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसको वो मसीही जिंदगी कहते हैं। उनके आप मैसेज सुन लें, हर पैगाम घूम के आएगा तो देने पर खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं। हमारे चर्च हैं पाकिस्तान में, खुदावंद का शुक्र है, मेरे एल्डर्स के साथ बात होती है, हम कोशिश करते हैं बेवाओं को दें, यतीमों की कुछ मदद करें, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहें। ये नहीं कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम भी कमजोर हैं, हमें भी खुदावंद के फजल की जरूरत है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सबक हमें मिला है, जो बाइबल हमें लेसन देती है, उसको फॉलो करें। लोगों तक बहुत कुछ नहीं, आप 20 किलो का तोड़ा आटे का नहीं दे सकते तो 5 किलो तो आटा दे सकते हैं। आप किसी को आला किस्म के हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवा सकते तो उसको पैरासीटामोल तो लेकर दे सकते हैं, खांसी का शरबत तो लेके दे सकते हैं। आप उसको मैरक के शूज नहीं लेके दे सकते तो लंडे के शूज तो दे सकते हैं, ताकि उसके पाँव जो है वो तो इस सर्दी में बच सकें। अगर उसको आला किस्म के कपड़े, गर्म सूट नहीं लेके दे सकते तो लंडे के तो लेके दे सकते हैं। क्या कुछ आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप देते जाओ पादरियों को, और वो पादरी बड़े सेलिब्रिटीज बने हुए हैं। मुझे कल की बात है, कल शाम को मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो कहने लगे कि जी मैं फलां घर गया, तो उन्होंने कहा जी आपकी कार कहां पे है। भाई खिदमत में आ गए हो या तुमने कोई माफिया ज्वाइन कर लिया है? खुदा की खिदमत कर रहे हो या आपने डकैती शुरू कर दी है? खुदा की खिदमत कर रहे हो या आपने स्मगलिंग शुरू कर दी है? खुदा की खिदमत कर रहे हो या आपने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले लिया कि लूटते जाओ? कुछ खुदा का खौफ करो। क्यों दुख बढ़ रहे हैं? क्योंकि खुदा की खिदमत में आपने सिर्फ और सिर्फ इसको बिजनेस का जरिया बना लिया है, प्रॉफिट का जरिया बना लिया है। जो चंदा देने वाले हैं वो साइकिलों पे हैं, वो किराए पे हैं, और जो चंदे लेने वाले हैं वो पराडो पे बैठे हैं, वो लैंड क्रूजर पे बैठे हैं, वो कारों पे बैठे हुए हैं। तो फिर लोग क्या सोचेंगे? क्या नमूना है? यस्सु के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कितने बड़े बड़े ऊंट और कितने बड़े बड़े घोड़े थे। उसने कहा लोमड़ियों के पास भट्ट और हवा के परिंदों के पास घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं। इतना वो उन अपने लोगों में, उस माशरे के लोगों के बराबर और उनके साथ रहने वाला एक खुदा का पैगाम था। हम कैसे खुदा के पैगाम हैं? हम किस तरह की जिंदा कलीसिया हैं? हम किस तरह के जिंदा खात हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा कि तुम मसीह के जिंदा खात हो। कैसे खात हैं? फ्रॉड के, धोखे के, लोगों का दुख बढ़ा रहे हैं या दुख कम कर रहे हैं? लोगों को खुशी का जरिया बना रहे हैं। लोग तो पहले ही बड़े दिक आ चुके हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अंदर को खाली करें, अपनी रिफाकत को कम करें, अपनी बैठक को, अपनी महफिल को कम करें, खास लोगों के साथ बैठे, कम लोगों के पास बैठे और तन्हा बैठे और दुआ करें और सोचें। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे मां के पेट से आना दुश्वार लगता था, इसी तरह अब इस दुनिया से जाना दुश्वार लगता है। जब मां के पेट से बाहर आ गए तो खुशी मिल गई। जब दुनिया से जाएंगे तो फिर भी आप खुशी पाएंगे, क्योंकि आप खुदा में शामिल हो जाओगे, आप खुदा में रहोगे। इसलिए
یہ